Hello students, welcome back to the site of resonance. In the previous lecture we have studied about the frictional force. The chapter named was friction. We have studied about the frictional force, that it is an opposing force which opposes the relative motion or the tendency of relative motion between the two surfaces of bodies in contact. We have studied about the types of friction, that was the static and kinetic. We have also studied about the rolling friction. Then we have studied that what are the advantages and disadvantages of the friction and how friction is a necessary evil. Then we have studied about how to reduce the friction and how you can increase the friction with the various methods we have seen them. Then we have studied about the liquids and gases friction, that is the friction in liquid and gases. Now today we will going to start a brand new chapter, a very new chapter, that is the fourth chapter of class 8th, that is sound. That is sound. Now let's have a discussion about sound in this class, that what sound is, sound क्या होती है, what is sound. The first thing is, see, sound, if you talk about in layman language, it is a आवाज. अगर आप हिंदी में बोलें तो साउंड क्या है, आवाज. देर इज, वी आर सराउंडेड विद वेराइटी ऑफ साउंड्स, वी आर सराउंडेड विद वेराइटी ऑफ साउंड. सी, देर इज अ साउंड ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड नियर बाय, there is sound of the train passing on the track, there is the sound of the chirping of birds, and there is sound of the sweet sound, melodious sound of the water flowing in a river or the water falling in a waterfall. So in nature the sound is the nature has given us the pleasant sounds by which we are surrounded. इतनी सारी आवाज़ ही आवाज़ and melodious sound, that is pleasant sound, that is music. And there are noise also, that is the unpleasant sound which we don't want, that are the unwanted sounds. So we are surrounded by sounds. Now I am speaking, you are listening, means I am producing a sound and you are listening that sound. Okay, so we are surrounded by variety of sound. variety of sound. Sound होती है, आपको अगर हिंदी में बोलूँ तो आवाज़, है ना. साउंड बेसिकली फिजिक्स में अगर हम स्टडी करें तो एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स व्हाट साउंड मीन्स, तो साउंड का मतलब फिजिक्स में क्या होगा हम ये देखते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साउंड एंड हाउ वी विल गोइंग टू डिफाइन साउंड इन फिजिक्स. तो बात करूं अगर साउंड की, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड एक एनर्जी है. साउंड क्या है, एनर्जी. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us the sensation of hearing. साउंड एक एनर्जी है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हमें सुनने का एहसास होता है. इट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग. साउंड क्या है, एनर्जी है. कैसी एनर्जी, जो कि हमें हियरिंग का सेंसेशन दे, हमें सुनने का सेंसेशन प्रोड्यूस करे, दैट इज साउंड. सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग. ठीक है, this is the sound. Let us write the definition of sound, what sound is. So sound is a form of energy which produces sensation of hearing. Okay, this is sound. एक एनर्जी है जो हमें सुनने का एहसास कराए. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस, विच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग, दैट इज साउंड. नाउ सी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब साउंड क्या है, एनर्जी का फॉर्म है. अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मतलब मैं कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ साउंड, एंड इट इज गोइंग टू योर ईयर्स, इट इज गोइंग टू योर ईयर्स, एंड देन इट इज प्रोड्यूसिंग अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग ओवर देयर. मीन्स साउंड इज ट्रैवलिंग, मीन्स साउंड इज इन मोशन. साउंड ट्रैवल कर रही है मेरे से आप तक, बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से वो ट्रैवल कर रही है. सो साउंड एक्चुअली में एनर्जी है. अब ये एनर्जी ट्रैवल कर रही है, तो लेट्स सी हाउ इट इज ट्रैवलिंग. So sound travels in form of disturbances, it travels in form of wave. So sound energy travels, so sound travels
in form of wave. Now there is a term which is coined over here, it is wave. There is a term which is coined here, that is wave. साउंड ट्रैवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव, साउंड ट्रैवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव, वेव के फॉर्म में ये आगे ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो अब वेव क्या होती है, सबसे पहले डिस्कशन अपना इस पे होना चाहिए कि वेव क्या होती है. साउंड तो एनर्जी है और वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है. नाउ व्हाट इज वेव? वेव क्या होती है अपन देखते हैं. Wave is nothing but it is a disturbance. It is a disturbance in which energy is transferred from one place to another place without transferring of the medium. So what is wave? It is a disturbance. It is a disturbance in which energy gets transferred from one place to another without transfer of medium. विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मीडियम. अब वेव के अंदर क्या है, इट इज अ डिस्टर्बेंस. वेव क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है. वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच इन विच एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड. किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम. दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ वेव. अब आप देखो वेव के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे. देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एनर्जी यहाँ से वहाँ मूव कर जाएगी लेकिन मीडियम मूव नहीं करेगा. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल मीडियम. मीडियम या मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह. दैट इज वेव. इसको वेव बोलेंगे. एक डिस्टर्बेंस है, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेकिन मीडियम ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो वेव है. तो वेव क्या है, डिस्टर्बेंस. वेव क्या है, इट इज अ डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसफर और द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम. इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, लेट्स टेक अ स्टोन एंड ड्रॉप दैट स्टोन इन अ लेक और रिवर. अब देयर इज अ स्टिल लेक, लेट अस टेक अ लेक which is still and you dropped a stone in that lake. What will going to happen, there will be creation of ripples. Ripples are nothing but they are waves or you can take it them as pulse. So जैसे आप स्टोन गिराएंगे तो रिपल्स बनेंगे, दैट इज वेव. मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होएगा पानी के अंदर. in the water of the lake will going to get disturbed. There will be a creation of disturbance as soon as you will going to drop a stone in that lake. आप जैसे ही लेक के अंदर एक पत्थर को गिराएंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है. आपको भी पता है रिपल्स बनती है. क्या बनती है, रिपल्स बनती है. तो वो जो डिस्टर्बेंस है, वो जो रिपल्स है, उनको हम वेव बोल सकते हैं, पल्स बोल सकते हैं. बाद में पढ़ेंगे वेव और पल्स में डिफरेंस क्या होता है. बट जैसे ही आपने स्टोन गिराया तो रिपल्स बनी. अब जब वो रिपल्स बनी तो यू हैव सीन दैट एनर्जी जो कि स्टोन के अंदर थी, वो एनर्जी उस वाटर के अंदर गई और फिर वो एनर्जी ट्रांसफर हुई इन द फॉर्म ऑफ वेव. वो एनर्जी मानो लेक के बीच में आपने स्टोन गिराया तो कहाँ तक पहुंच जाएगी, वो उसके शोर तक पहुंच जाएगी. लेक का जो बैंक है उसके शोर तक पहुंच जाएगी वो एनर्जी. लेकिन आपने देखा पानी का ट्रांसफर नहीं हुआ, वाटर मूव नहीं हुआ, वाटर ने अपनी जगह छोड़ी नहीं परमानेंटली और एनर्जी ट्रांसफर हो गई मिडल से साइड तक. सो वेव के अंदर क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है लेकिन मीडियम मूव नहीं करता. अगर आपको इससे भी अच्छी फील नहीं आई तो मैं आपको बहुत अच्छी फील दिलाता हूँ. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ बेडशीट. टेक अ बेडशीट, hold the corners of the bedsheet in your hand and the opposite corners of the bedsheet, you tell your friend or your mom or your dad to hold the opposite corner of that bedsheet. Now give a jerk to the bedsheet. Give a jerk to the bedsheet. What you will going to see, when you will going to give a jerk to the bedsheet, there will be a formation of disturbance. There will be a formation of disturbance. एक disturbance create होएगा जिससे जो energy आपने उस bedsheet को दी वो transfer हो जाएगी आपके सामने वाले partner के पास. That can be your friend, your mom or your dad.
और सिस्टर और योर ब्रदर। तो जैसे जिसने भी उधर जो कॉर्नर्स पकड़ रखे हैं, आपने इधर के कॉर्नर पकड़े बेडशीट के, पकड़ी और आपने एक जर्क दिया, जैसे आपने जर्क दिया तो देयर विल बी अ डिस्टर्बेंस व्हिच विल बी गेटिंग ट्रांसफर्ड बाय टू दी अदर फेलो दैट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू होल्डिंग द कॉर्नर्स ऑफ द बेडशीट। जैसे आप जर्क दोगे तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होएगा जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी सामने वाले पर्सन के पास। जैसे आपने ऐसे जर्क दिया तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो गई किसके पास, सामने वाले पर्सन के पास, थ्रू अ डिस्टर्बेंस। देयर विल बी अ डिस्टर्बेंस। बट अगर आप बेडशीट पे देयर इज अ डिजाइन, इट कैन बी अ फ्लावर और यू कैन मार्क अ पॉइंट ओवर दैट मार्क अ पॉइंट ऑन द बेडशीट। जैसे आपने बेडशीट को जर्क दिया तो आपने देखा एनर्जी तो ट्रांसफर हो गई सामने वाले के पास, एक डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हुआ, लेकिन जो डिजाइन है उस बेडशीट पे, देयर इज अ डिजाइन, और या फिर आपने कोई मार्किंग बनाई है उस बेडशीट पे, वो मूव नहीं करी, वो अपनी प्लेस पे ही थी। जब एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी थी तो आपने देखा कि क्या डिजाइन मूव कर गई आगे पीछे, क्या वो पॉइंट आगे पीछे मूव करा, लेकिन वो पॉइंट आगे पीछे मूव नहीं करा, मतलब मटेरियल मीडियम का ट्रांसफर नहीं हुआ। डिस्टर्बेंस किसके थ्रू गया, बेडशीट के थ्रू गया। एनर्जी किसके थ्रू ट्रैवल करी, बेडशीट के थ्रू ट्रैवल करी, आपसे सामने वाले पर्सन तक। लेकिन क्या मटेरियल मीडियम ट्रांसफर करा, नहीं करा। अगर मटेरियल मीडियम ट्रांसफर होता तो वो पॉइंट जो आपने मार्क करा था या कोई डिजाइन है वो आगे या पीछे मूव हो जाती। अगर परमानेंट मटेरियल ट्रांसफर हो जाता तो वो डिजाइन या पॉइंट आगे या पीछे मूव हो चुकी होती उस बेडशीट पे, क्योंकि वही तो मीडियम है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो वो जो डिस्टर्बेंस आपने बनाई जिससे एनर्जी आपसे सामने वाले पर्सन के पास गई, वो वेव थी, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, लेकिन मटेरियल मीडियम का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। तो हमने दो एग्जांपल से समझा कि वेव एक्चुअली में होती क्या है। वेव एक डिस्टर्बेंस है। वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, लेकिन मटेरियल मीडियम का ट्रांसफर नहीं होता। जो मटेरियल मीडियम है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जिसमें वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है, वो मटेरियल मीडियम एक प्लेस से छोड़कर दूसरी प्लेस पर परमानेंटली नहीं जाएगा, वो अपनी प्लेस पे ही आपको वापस मिलेगा जब वो डिस्टर्बेंस उससे पास हो चुका होगा। होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है, पार्टिकल्स हैं उस मीडियम के, वो एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को देते हैं और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। फिर वो पार्टिकल अपने पास वाले नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी इंपार्ट करता है और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। इस तरीके से एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर होती है बाय डिस्टर्बेंस। बाय अ डिस्टर्बेंस मतलब एक पार्टिकल अपने नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी देगा, वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी देगा, वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी देगा। तो जो पार्टिकल्स है वो परमानेंटली अपनी जगह से नहीं खिसके और एनर्जी उन्होंने क्या कर दी, पास ऑन कर दी। एनर्जी क्या कर दी, पास ऑन कर दी। मतलब वेव के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी पास ऑन हो रही है, एनर्जी ट्रैवल हो रही है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो मूव नहीं करे परमानेंट, उन्होंने अपनी जगह परमानेंटली नहीं छोड़ी, टेम्पररी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे विल गोइंग टू मूव एंड अगेन गोइंग टू कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। शॉर्ट पीरियड के लिए पार्टिकल्स मूव करते हैं आगे पीछे या ऊपर नीचे, जैसे भी मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स मूव जरूर करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। मतलब एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा पार्टिकल्स का, एक्चुअली पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होंगे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, लेकिन एनर्जी जरूर ट्रांसफर होगी। वो एक मॉलिक्यूल पास वाले को दे देगा, वो उसके पास वाले को दे देगा, वो उसके पास वाले को दे देगा। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ जिससे एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, लेकिन मटेरियल मीडियम का ट्रांसफर नहीं हुआ, वो वेव है। अब जो साउंड है ना बेटा, क्या साउंड, that travels in form of wave, sound travels in form of wave, sound energy travels in the form of wave, sound propagates in the form of wave। sound जैसे ही मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, तो मैंने जैसे ही बोला मैंने यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करा मेरी वोकल कॉर्ड्स ने, मेरे नेक के अंदर देर आर वोकल कॉर्ड्स, वो वाइब्रेट हुई, उन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट करा, जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस से एनर्जी ट्रांसफर हुई कहाँ तक, आप तक। वो एनर्जी ट्रांसफर हुई इस एयर के थ्रू कहाँ तक, आप तक। अभी आप मुझे ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, तो फॉर द एग्जाम्पल द कैमरामैन इज लिसनिंग टू मी, तो जो मेरी एनर्जी है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गई, सामने जो मेरे खड़े हैं, किसके थ्रू, इस एयर के थ्रू। लेकिन क्या एयर परमानेंटली मूव करी, एयर परमानेंटली मूव नहीं करी, मेरी साउंड एनर्जी वहां तक पहुंच गई, लेकिन एयर परमानेंटली मूव नहीं करी, दैट इज वेव। तो वेव की फॉर्म में साउंड एनर्जी ट्रैवल करती है, किसकी फॉर्म में साउंड ट्रैवल करती है, ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। पार्टिकल मीडियम के मूव नहीं होते परमानेंट, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, दैट इज साउंड, दैट इज साउंड। अब आपको फिजिक्स के थ्रू थोड़ी सी फील आई होगी कि साउंड में एक्चुअली होता क्या। साउंड एक एनर्जी दैट क्रिएट सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। साउंड एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, ये ट्रैवल करती है वेव की फॉर्म में।
किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव की फॉर्म में। वेव क्या होती है? एक डिस्टर्बेंस है। वेव इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड। एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम। मीडियम ट्रांसफर नहीं होता जिसके थ्रू डिस्टर्बेंस पास हो रहा हो। मीडियम अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पे नहीं जाएगा, लेकिन एनर्जी चल जाएगी। दैट इज वेव, दैट इज वेव। नाउ देयर इज अ टर्म दैट वी शुड डिस्कस अगेन. You have already studied in your earlier classes, I think so, but we should do that for a revision purpose. That is vibration. Now what is vibration? Vibration is nothing but it is a to and fro movement of particles about their mean position. मतलब एक पार्टिकल यहाँ पर है, वो थोड़ा सा इधर जाएगा टिचिक, वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे, फिर इधर जाएगा टिचिक, फिर वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन। मतलब टू एंड फ्रो मूव करेगा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इट विल गोइंग टू मूव टू एंड फ्रो लाइक दिस. That is vibration. That is vibration. The movement of particle in to and fro motion of particle about its mean position. To and fro movement of a particle about its mean position is known as vibration. So what is vibration? It is to and fro movement of particle about its मीन पोजीशन. सो जब वेव ट्रैवल करती है, अब वेव के भी टाइप्स होते हैं, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट अभी मान लीजिए वेव ट्रैवल करती है तो हो सकता है पार्टिकल्स मीडियम के क्या कर रहे हो, वाइब्रेट कर रहे हो. पार्टिकल्स के मीडियम क्या करते हैं, वाइब्रेट. मैंने बोला ना मूव जरूर करेंगे, लेकिन एक्चुअल नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा पार्टिकल का. पार्टिकल एक्चुअली में अपनी जगह को छोड़ के हल्का से टाइम पीरियड के लिए जाएंगे, वापस आ जाएंगे. ऐसा नहीं कि पार्टिकल यहाँ से चलकर वहां चल गया परमानेंट, ऐसा नहीं होगा. तो वो क्या करते हैं, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं. दे कैन वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, और दे कैन वाइब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव. और उसके बेसिस पे हम वेव को क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे इन टू टाइप्स, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव. वो बात की बात है, हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वेव को बाइफरकेट. मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है. अब जरूरी नहीं है वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट हो ही सही. ऐसी वेव्स भी है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो केवल ट्रैवल कर जाती है बिना मीडियम के रिक्वायरमेंट की. बट कुछ वेव्स होती है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी हम बाइफरकेट करेंगे वेव्स को. साउंड वेव एक ऐसी वेव है जिसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की. अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी. इसलिए साउंड सन पे जो ब्लास्ट हो रहे हैं इतने बड़े बड़े ड्यू टू दी फ्यूजन रिएक्शंस, तो वो आवाज हमको यहाँ तक क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, वैक्यूम. बीच में क्या आ जाता है बच्चों, वैक्यूम आ जाता है. देयर इज अ स्पेस इन विच देयर इज वैक्यूम, देयर इज नो मटेरियल मीडियम प्रेजेंट बिटवीन अर्थ एंड सन. दैट इज व्हाई द sound of sun is not reaching to us. That is the reason why sound of sun is not reaching to us. So sound को travel करने के लिए material medium की requirement है. Sound एक ऐसी wave है जिसको travel करने के लिए material medium की requirement होती है. तो vibration क्या होता है, to and fro motion. अपनी mean position के about to and fro motion. वो अपने पार्टिकल से अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा आगे जाएगा, वापस पीछे आ जाएगा, फिर पीछे की साइड जाएगा, फिर वापस आगे आ जाएगा. या फिर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं वाइब्रेशंस. कैसे हो सकते हैं, ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में इट कैन हैपन. दैट इज अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल. इट इज नोन एज वाइब्रेशन. सो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि साउंड क्या होती है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which causes sensation of hearing. फिर हमने पढ़ा साउंड ट्रैवल कैसे करती है. जो साउंड की एनर्जी है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस कैसे जाती है, गोज इन द फॉर्म ऑफ वेव. किसकी फॉर्म में जाती है, वेव की फॉर्म में. और वेव क्या होता है, वेव इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टर्बेंस which transfer energy from one place to another without any ट्रांसफर ऑफ मीडियम. मतलब बिना मीडियम को ट्रांसफर करे वो एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है. क्या, एक डिस्टर्बेंस है वेव. वेव क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टर्बेंस जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, लेकिन मीडियम ट्रांसफर नहीं हो सकता है. हमने एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल से समझा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ बेडशीट एंड द स्टोन ड्रॉपिंग इन अ लेक. Then we have seen what is vibration. Vibration is to and fro motion of a particle about its मीन पोजीशन. और जब वेव ट्रैवल करती है मीडियम में, तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं. मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. दे कैन वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ वेव, और दे कैन vibrate in a direction perpendicular to the propagation of wave. That we will going to study in our next lecture, when we will going to bifurcate wave into the subparts. So thank you for today. We will going to continue in our next lecture.